ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और इसमें असल इशू ये था कि ये प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर इंटरवल 0 to 1 इज 0. I'm leaving it for your exploration, but I'm discussing a similar other problem. And that other problem is uh, I'm considering one other function, fx, which has values defined by some, say, integer. For what values of input? Uh, x belongs to the interval 0 to 10. Acha. This function has a nature that if x belongs to n, that is a natural number, fx is equal to n. But if x is not a natural number, then the function is 0. Now, this kind of a function means for every x over the interval 0 to 10, the output is a constant natural number. But this function now is of entirely different nature. चलो इस n को मैं कह देता हूँ okay 4. So this will have a graph from 0 to 10. Every input produces output is equal to 4. So this line, a constant function. And whatever method you use, you will come out to have the integral of the function 0 to 1 of this function to be 40. चाहे आप ज्योमेट्रिकली देखें इसको, चाहे आप रीमन सम इस्तेमाल करें कांस्टेंट फंक्शन के लिए, you will get this. But when we redefine this function in this form, what's happening? तो इंटीग्रेबल नहीं होगा फिर वो, क्योंकि पॉइंट्स आ रहे होंगे। हाँ, 1 1 2 3 4 पे जंप आ रहे होंगे, 1 2 3 4 पे डॉट्स आ रहे होंगे। he. So 1, 2, 3, 4, 5. चलो 5 तक डिस्कस करते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. Now, when I make a Riemann sum, for lower sum, I take lower bounds into width of the interval, and upper sum for this function, whatever scheme you consider, like जैसे कि हमने एक डिस्क्रीट कर रहा हूँ एक फंक्शन के लिए 0 to एप्सिलॉन और फिर एप्सिलॉन से 1 माइनस एप्सिलॉन, इस तरह की अगर तुम कोई स्कीम लो, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन एक इंटरवल, फिर 2 माइनस एप्सिलॉन से लेके 2 प्लस एप्सिलॉन. So 1 plus epsilon से लेके 2 minus epsilon तक मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, because I don't have a point in between on the graph of the function. अच्छा जी. Now width of this interval is what? 1 plus epsilon minus 1 plus 2 epsilon. इसकी भी width 2 epsilon है. So अब जब मैं यहाँ पे width 2 epsilon, यानी ऐसे जितने भी मैं बनाऊंगा
intervals of this type, 3 minus epsilon से 3 plus epsilon, इसकी भी width 2 epsilon होगी. And when I go to write down this sum, so I will have 1 times 2 epsilon plus 2 times 2 epsilon, so on. And you can find it out that this is 2 epsilon multiplied by 1 plus 2 plus 3 up to 10. So 10 into 11 divided by 2. And this whole lower sum, where I have taken a lower bound on each subinterval as 1, produces this thing which depends only on epsilon, and as epsilon approaches 0, this goes to 0 as epsilon approaches 0. क्योंकि rectangle तो बन ही नहीं रहा ना, correctly pointed out by someone who commented before I started discussing this. Now, have you got this idea? In every such interval, lower bound भी 1 होगा, upper bound भी not exactly 1 हो, for 1, 2, 3 जो image values है, y values है, up to इस interval पे बात कर रहे हैं ना, तो 1 से लेके 10 तक. ये values भी वही यही होंगी, 1, 2, 3 up to 10. So lower bound और upper bound same है for every such interval, every such partition. And every interval has a width 2 epsilon. और जब तुम इन सबको ऐड करोगे तो इस तरह का सम आएगा जो epsilon dependent होगा, और when epsilon goes to 0, this sum goes to 0. So both lower sum and the upper sum goes to 0. ये नहीं है somebody who commented कि ये क्या क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेबल तो है मगर इंटीग्रल इसका 0 है. Because lower integral and upper integral both are same. So हम यहाँ पे limit n approaches infinity से नहीं कर रहे बल्कि epsilon approaches 0 से कर रहे हैं in both cases. सर आपने समेशन के बाद क्या लिखा है, ये जो नीचे लिखा है? ये यस. हाँ, पहला interval, this one, function value 1, height of this point, and interval width, plus second interval, function value, height of this point, 2 into 2 epsilon. And here, function value 3, height of epsilon. So we are going to have this kind of contribution up to last point जो कि 10 है. So 10 minus epsilon, 10 into 2 plus epsilon. So I take 2 epsilon common throughout. So what is the rest of it? Just the sum of first 10 whole numbers. And I hope you know this formula, 10 into 11 by 2 gives the sum of this multiplied by 2 epsilon, and this whole thing goes to 0 as epsilon goes to 0. So चाहे मैं lower sum यानी lower bound लूँ तो function हर interval में lower bound और upper bound same है, तो ये भी same. Now this way, this function is indeed integrable, because both the lower sum and the upper sum under the limit epsilon approaches 0 goes to 0. Integrable है, लेकिन इसका integral 0 कैसे आ रहा है मैं वो describe कर रहा था. And then you think about that problem. What problem? जो मैं last time आपसे discuss कर रहा था. This is a function of a similar kind, मगर जिस तरह हमने अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस की उसमें हर इमेज पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट डिस्टेंस पे है.
यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं तो हर इमेज पॉइंट जो है वो इतने बड़े डिस्टेंस पे तो नहीं, लेकिन देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर्स दैट यू कंसीडर, एंड यूजिंग दैट सेम लॉजिक वी कैन से दैट इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि for every rational number between 0 and 1, you will have only lines instead of rectangles. So, in fact, here you will have lines with larger heights and one height की line ये होगी, because 1/1, 1/2, 1/3 kind of things are there. तो चूंकि यहाँ rectangles नहीं बन रही, lines बन रही हैं, for every rational number between 0 and 1, you have a vertical line. And when delta x approaches 0, n approaches infinity, or delta x approaches 0, you will not have rectangle widths available. Rectangle widths will be 0. That makes the integral 0. अच्छा जी, एक तो ये बात डिस्कस करनी थी आज मैंने, दूसरा क्या डिस्कस करना था, ओके सर इस क्वेश्चन की एक पिक लेनी है, वो जो आपने लिखा था ना x अच्छा, एक्सिस पे। वो कहाँ से आया था, वो था उस पे व्हाइट बोर्ड पे। यार इनको तो कम करो। ठीक है सर। ठीक है, सर तो एनोटेशन बंद करो, देन जरा मैं यार इस पे आ जाता हूँ ना। हाँ, ये जो हम फाइल डिस्कस कर रहे थे, ये नोट्स डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक चीज डिस्कस करनी है मैंने। अरे भाई ऐसे तो नहीं करो ना, ये मैं जब हेडसेट लगाए हुए होता हूँ तो इधर उधर की कोई आवाज आती है तुम लोगों को? नो सर, कभी नहीं आई। नहीं सर, नहीं आती। तो मुझे क्यों आती है? तुम लोग हेडसेट नहीं लगाते हो? सर आपके इर्द गिर्द शोर नहीं होता होगा ना, जिनका माइक खुला रह जाता है उनके इर्द गिर्द शोर हो रहा होता है तो आवाज आती है। ओके, सर वो असल में जब ज्वाइन करते हैं ना तो सर वो माइक अनम्यूट होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ज्वाइन करने में, तो उसमें शोर आ जाता है। अभी जैसे आ रहा है, देखें। हाँ, कोई बात नहीं। क्या चीज डिस्कस करनी थी? हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये रिजल्ट जो है, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी प्रूव किया हो, बट जो टूल हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का इस्तेमाल करते रहे हैं वो ये है कि किसी, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, you want to find out its value, you take the antiderivative of the function small f. If that is capital F, तो antiderivative लिखने के बाद फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हो और हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो गया। So fundamental theory of integral calculus जो है वो ये कहती है कि if a function is bounded and integrable on the given interval a b, then there exists a function, and there exists a function capital F such that the derivative of capital F is the small f for every x in the interval. Then the integral small f is equal to capital F b value at b, capital F value at b minus capital F value at a. यानी वो जो हम बचपन से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते चले आ रहे हैं उसका प्रूफ। हो सकता है ये भी किसी स्मार्ट टीचर ने तुम लोगों को करा दिया हो कैलकुलस में।
अरे कोई बात नहीं। No need to be sorry for it all is usual। पिछले दिनों मैं वो देख रहा था कुछ जो मेम्स बने हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के। सर आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूँ पिछले दिनों मैं देख रहा था यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोगों ने शेयर किए हुए चीज़ें कि जी वो क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस बड़ी स्मूथ रही हैं, मिनिमम ऑफ डिस्टरबेंस और शुड आई से नो डिस्टरबेंस एट ऑल। तो ये हल्की फुल्की आवाज़ कभी आ जाती है तो जिंदगी का एहसास होता है कि वी आर नॉट जस्ट इनऑर्गेनिक बीइंग्स। मैं आपको खालिस ठोस खुश्क मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा हूँ और आप पूरा जोर लगा रहे हैं उसको समझने के लिए, एंड नथिंग एल्स इज हैपनिंग अराउंड। लेकिन जब इधर उधर की आवाज़ें आती हैं तो लगता है हाँ यार हम जिंदा हैं, रोबोट्स नहीं हैं। कोई बात नहीं, डोंट माइंड दैट। अच्छा, हाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट? We consider a model subinterval xi minus 1 to xi, and we are given capital F to be derivable। जाहिर है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f है ऑन दिस इंटरवल तो कैपिटल F इज डिराइवेबल, जब भी तो है ना ये। So when capital F is derivable, it has to be continuous on the interval also. So we can say that in this interval, there has to be an interior point such that capital F satisfies Lagrange mean value theorem. I hope you remember Lagrange mean value theorem. F prime C is equal to FB minus FA divided by B minus A, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि F at right hand point minus F at left hand point divided by delta x, तो delta x यहाँ लिखा हुआ है। So Lagrange mean value theorem satisfy करता है capital F, so I can write down for every such interval this statement. For the first interval, for the second interval, for the third interval, and for the nth interval. So then I can write down one such line for every interval, and then I add them together. When I add them together, fx naught लेफ्ट साइड पे कैपिटल fx नॉट बचेगा और कैपिटल fxn बचेगा, बाकी fx1 कैंसिल, fx2 कैंसिल, fx3 कैंसिल, fxn माइनस 1 कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सम्स आ रहे हैं उनमें सब कुछ कट कटा के सिर्फ कैपिटल F at xn, the last point of the partition, minus capital F at x naught, the first point of the. What happens on the right hand side? The right hand side, we have capital F prime at interior point of the first interval, and F prime is equal to capital F prime is equal to small f. So capital F prime is replaced by small f at the interior point of the first interval. Capital F prime at the interior point of second interval is replaced by small f at the same interior point. इसमें सारे derivatives जो हैं capital F के replaced by functions, और यहाँ पे I'm considering that all these interval widths are same, delta xi, and that makes the general sum, because function values in every interval are being taken at some point which is an interior point of subinterval. So this makes a general sum. And just since the function small f is given to be integrable, function small f is integrable, so it is necessary that some general sum approaches the integral as the norm of the partition goes to 0. This proves that capital FB minus capital FA is the integral a to b of small f. इस तरह की दो चार थ्योरम्स हैं जो थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन जिस पर आगे बढ़ती है।
फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का जिक्र मैंने किया था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो थ्योरी है वो डेवलप होती है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से जिनका यहाँ जिक्र किया गया है। बट एबल्स लेमा है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, रीमान लबेग लेमा है, उसके बाद लबेग इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। बट आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। आज वी हैव ओनली 10-11 डेज। करने को तो मैं और बहुत कुछ भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा वैसा ही होता है कि इंटीग्रेशन, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में कहीं हमें रुक जाना पड़ता है। इट हैज़ बीन मेड अ 4 क्रेडिट कोर्स और हमने काफ़ी टाइम लगाया है इसमें, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अब ये जो हमारे फिज़िकल क्लासेस नहीं हुई हैं उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा, और डिस्कनेक्शन मेरी एंड पे भी और आपके एंड पे भी। लास्ट 2 थिंग्स जो है उसमें एक डार्बो थ्योरम का मैंने आपसे जिक्र किया था, थोड़ा सा वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। मैंने वैसे लिखा हुआ था पिछले इन नोट्स में कि डार्बो थ्योरम जो है उसको आप देखिएगा खुद, कहीं जिक्र है डार्बो थ्योरम का। ये हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ जिक्र किया था। पर डार्बो थ्योरम जो है वो इंटीग्रेशन ये थ्योरी है उसकी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से बहुत पहले की चीज़ है। इसके प्रूफ को इस तरह से नज़र से हम देखते हैं कि फंक्शन अगर बाउंडेड है किसी इंटरवल पे तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, यहाँ बात ये हो रही थी कि अपर सम्स जो हैं बाउंडेड बिलो हैं, तो इसका एक इन्फिमम होगा। उस इन्फिमम में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, कोई छोटा सा नंबर ऐड कर दीजिए, तो रिजल्ट जो है वो किसी ना किसी अपर सम से बड़ा हो जाएगा। अपर सम्स के इन्फिमम में कुछ भी ऐड कर दें तो यू विल फाइंड एन अपर सम लोअर देन दिस। इसी तरह लोअर सम्स जो हैं वो बाउंडेड अबव हैं, उसका कुछ सुप्रीमम होगा, उस सुप्रीमम में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल हैव दिस थिंग। If you want me to make some sort of figure to demonstrate what is the meaning of this, तो मैं एक लाइन पे डिस्कस करूँगा कि कोई भी सेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेट ऑफ अपर सम्स, तो उसका इन्फिमम समवेयर हियर, दिस इज स्मॉल m for the set of all upper sums. यहाँ है सारे अपर सम मुख्तलिफ पार्टीशन पे, जितने भी अपर सम्स आ रहे हैं वो इस इलाके में, और सबसे छोटा अपर सम। तो अगर मैं m प्लस एप्सिलॉन कर दूं ना, m इज बेसिकली दिस, तो कोई ना कोई अपर सम जो है अब m प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये हमारी जो है शुरू में हमने डिस्कस की है प्रॉपर्टीज इन्फिमा और सुप्रीमा की, वो है। इसी तरह इफ यू वर्क आउट फॉर सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, अब सारे लोअर सम्स जो है वो यहाँ है। अगर तुमने m में से यानी सुप्रीमम में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो कोई ना कोई ऐसा लोअर सम मिल जाएगा जो इससे बड़ा। फॉर एवरी पार्टीशन p with norm mu less than delta। तो पहले एक ही को हम प्रूफ करके बात खत्म कर देंगे, क्योंकि द प्रूफ ऑफ द अदर विल बी सिमिलर। चूँकि फंक्शन f इज बाउंडेड, तो आपके पास एक नंबर ऐसा होगा कि एवरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन मॉड इज लेस देन k। फर्दर, as this is the infimum of all upper sums or GLB, there exists epsilon such that
कोई एक ना एक पार्टीशन ऐसा होगा such that you will have the upper sum less than this plus 1/2 epsilon. आप कहेंगे कि आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया. It's not exactly complete. Let P1 be this partition that has P plus 1 points. Now, K is the largest value of the function. Delta is the largest possible value of width of interval. So what should be K times delta? That is the largest possible value of the sum of rectangles. Achha janab. Now, how many rectangles do I have? That means how many subintervals I have. P1 partition has P plus 1 points. अगर मैं x0 से xp तक लूँ, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं वो P बनते हैं या P minus 1 बनते हैं, whatever you consider. This number will be what? इसमें ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये स्मॉल है. So small number multiplied to a finite number will be a small number that we have been considering before. So once we understand the construction of this, we say that this is some other small number, 1/2 epsilon. अगर मैं एक पार्टीशन ऐसा ले लूं इसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है और P प्राइम उसकी रिफाइनमेंट है, then P prime is P plus P union P1. Now this P star is refinement of P as well as P1. So upper sum on P minus some positive number will be less than upper sum of P prime, which is a refined partition compared to P, which will be less than or equal to upper sum on some partition P. When you refine the partition, what happens? The upper sum decreases. So this is refinement, so this less than this. और यहाँ पर हमने ये जो तरकीब लिखी हुई है, ये समझने की बात है. That will complete the argument. And all these things are less than the integral plus half epsilon. So यहाँ मैंने थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि when I have a partition which is finer, when I have a partition which is finer, so this upper sum should be smaller than this. लेकिन अगर मैं इसमें से एक small number subtract कर दूं, तो ये upper sum बड़ा हो जाएगा. That's the logic of this step. But this whole thing ultimately is less than the integral plus 1/2 epsilon as the function is integrable. This is all described here, and ultimately this whole thing, this is replaced by 1/2 epsilon and less than this, and ultimately we say that ये दोनों 1/epsilon और 1/epsilon या add होके epsilon हो जाएंगे. In fact ये मैंने epsilon नहीं लिखा या लिखना complete नहीं किया. I stop at this point. So the complete thing will be that this becomes plus 1/2 epsilon, and that means integral from A to B upper fx dx plus epsilon. So that is first part of the Darboux theorem.
that if you add anything to upper integral, there will be an upper sum lesson that if you subtract anything from the lower integral, there will be a lower sum greater than lower integral minus epsilon. So एक तो ये चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था और one more thing before I conclude my discussion and come to discuss syllabus for the final. A necessary and sufficient condition for integrability of a bounded function f is that f for every epsilon positive, there is delta positive such that for every partition AB with norm less than delta, the difference between any upper sum and lower sum is less than epsilon. That means upper sum approaches the lower sum and lower sum approaches the upper sum. डार्बो थ्योरम को इस्तेमाल किया गया है इसको प्रूफ करने के लिए. तो मैंने शेयर कर दी हैं फाइल्स अपने LMS पे जो हमारा थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन का फोल्डर बनाया है उसमें मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं. तो प्लीज गो थ्रू दिस प्रूफ एंड लेट मी कम टू the necessary and sufficient condition that has just been stated here for integrability of a function. देखें एक अहम बात ये कि सिर्फ बाउंडेडनेस चाहिए, बाकी ये कंडीशन चाहिए. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो फंक्शन इंटीग्रेबल आएगा. So this is an epsilon delta necessary and sufficient condition. इसको डिडक्शन के नाम से एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फंक्शन इज इंटीग्रेबल on an interval if and only if there exists a number I, the letter I taken from integral. If a function is integrable over interval, a function is integrable over an interval if and only if there exists a number I between every possible lower sum and every possible upper sum such that for all epsilon positive, there exists a partition such that upper sum minus the number I are very close together. The number and the lower sum are also very close to each other. This is happening in what condition? Of course, for if there exists a partition, कोई ना कोई ऐसा partition मिलेगा. Now this can be written as a limit of upper sum to be I. This can be written as limit of the lower sum to be I. Now, limit on what? Have we placed any thing on which this limit depends? हमने यहाँ पे कहा है there exists a partition. हर एप्सिलॉन चूज करें तो आपको कोई ना कोई ऐसा पार्टीशन मिलेगा. तो इसका मतलब है लिमिट जो हम पुट कर रहे हैं वो पार्टीशंस पे कर रहे हैं. अब पार्टीशंस पर लिमिट की एप्लीकेशन के हमने 2-3 तरीके देखे. हमने एक तरीका देखा है डेल्टा x अप्रोचेस 0, एक तरीका देखा है n अप्रोचेस इंफिनिटी, एक तरीका यानी n नंबर ऑफ इंटरवल गोज टू इंफिनिटी, the size of the constant interval goes to infinity, or the largest possible interval size goes to 0. तो मुख्तलिफ तरीके देखे हमने upper sum और lower sums की limit निकालने. So sometimes we have also considered epsilon approaches 0 when epsilon is involved in the lower or upper sum. So still I feel that I am
I have just touched the tip of the iceberg known as theory of integration, and lots of things are still there to be explored and discussed. But I'm going to stop now and want to share with you what to do in the examination. Syllabus for exam finals. Can you see this? Is this headings visible to you? Syllabus for finals? Yes, sir. Yes. That's good. Yes, sir. अच्छा जी, एनोटेशन हटा दें जी, स्क्रीन पे एनोटेशन आ रही है, हटा दी, हट गई ना, यानी अभी तक नजर आ रही है? जी सर हट गई। अच्छा जी, हमने चैप्टर 1 पढ़ा रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चैप्टर 2 पढ़ा ओपन सेट्स एंड क्लोज्ड सेट्स। तो that is an essential part of this course. तो मैं यहाँ वो लिखना भूल गया हूँ। जिस वक्त मैं लिख रहा था उसको जहन में नहीं आया। तो there should be written there. Let me consider it here. अब ये काम नहीं करेगा, ये गड़बड़ करता है। Real numbers, open and closed sets. So I will be calling it, मैंने जब इनको ABCD कह दिया तो इसको मैं O या 0 कह देता हूँ। Now 1, 2, 3, 4, 5 parts of the syllabus. Now out of these 5 parts, I will make 5 questions. We are going to have 120 minutes for working out the paper. And you should be able to work out the paper in 120 minutes, 2 घंटा. Then you have to compile your PDF file and upload on the LMS. So uske liye, I'm going to give you lots of time. 9:30 to 11:30, work out the solution. From 11:30 to 12:45, sawa ghanta, compilation of your PDF file and upload on the LMS. So you are free to use this extra time that I'm providing you for PDF file and upload on LMS. But ये कि टारगेट पे सबमिट कर देना। अगर टारगेट पे सबमिट नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम होती है, ईमेल जो है मुझसे कभी मिस आउट हो जाती हैं। और and this exam मादत के साथ TA will not be involved, so don't depend on TA. Now, each of the 5 questions that I will make will have 2 parts. One will be some proof. One will be a problem or 2. For example, मैं infinite series और infinite sequence इनको मैंने एक हिस्सा बना दिया। तो ये काफी बड़ा पार्ट है। अब इसमें से क्या प्रूफ पूछूंगा? So we have gone through many proofs, both in fact in every chapter. So a list of proofs that we have discussed. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
Okay. I will make a list of proofs. Must do. For example, अगर मैंने तुम्हें ओवरऑल मैंने तुमसे कहा ना 50% थ्योरी और 50% प्रॉब्लम्स होगी, तो 50% थ्योरी जो है वो प्रूफ्स हैं, और प्रूफ्स जो है वो अगर मैं आपसे टोटल 5 थ्योरम्स या कोई चीज़ प्रूफ करवा रहा हूँ, तो आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ अराउंड 15 theorems that we have theorems or results that we have proved during this course for sort of shortlisting के तुम उन proofs पे focus करो. Problems मैं तुम्हें assignments में देता चला आ रहा हूँ. कुछ problems theory of integration में दिए हैं. Derivability and related properties, तो इसमें फंक्शन की डेराइवेबिलिटी के प्रॉब्लम से लेकर और फंक्शन की जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टीज के जरिए हमने काम किया, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमने काम किया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि मैं एक प्रूफ दूं और एक प्रॉब्लम छोटी सी या दो, एक प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी सी या दो प्रॉब्लम छोटी छोटी. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्वेश्चन. So if I assign 10 marks to a question, depending on how intensive is the working for the proof, अगर ज़्यादा extensive ये हुआ तो इसके 6 marks, और उसके साथ जो problem होगा that will be, I'll try my level best कि वो थोड़ा सा हल्का हो. अगर proof हल्का है थोड़ा problem. So at times मेरी वैसे कोशिश होगी कि एक बार ही डिवाइड कर दूं 10 मार्क्स को प्रूफ और प्रॉब्लम पे. समटाइम्स प्रूफ को मैं 4 कर देता हूँ, प्रॉब्लम्स को 6 कर देता हूँ. सो दैट इज द सिलेबस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर फाइनल एग्जामिनेशन. तो प्रैक्टिकली जो लोग अपनी वर्किंग जो है हर कागज की पिक लेकर उसकी पीडीएफ फाइल मेरी तरह 5-10 मिनट में बना लेते हैं, तो उनको 9:30 से 12:30 तक यानी 3 घंटा ही अवेलेबल है ये सब कुछ करने के लिए. Resubmission, I will allow resubmission, but that will be only up to 12:45. ठीक है. इस चीज के बारे में कुछ आपने मजीद पूछना हो सिलेबस और सर जी आपने ना असाइनमेंट्स मतलब हमने इन्फिनिट सीरीज सीक्वेंसेस और इससे पहले वाले के तो किए हुए हैं, लेकिन जैसे इस वाले असाइनमेंट में सिर्फ क्वेश्चन 5 और 6 ही बाकी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो और आप क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हमें? यार जिस वक्त भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं कुछ सवाल बनाना शुरू कर देता हूँ. वो आपके से बस मैं पूछ रही हूँ कि आप करेंगे, आप करेंगे ना? बस कर रहा हूँ. कल जो मैंने कोई सवाल आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए थे ना, उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल बनाने बैठा था, लेकिन मेरे साथ एक लतीफा हुआ. बताएं सर. वो लतीफा मैं आपसे शेयर करूँ. हमने एक प्रॉब्लम किया था कि टेंजेंट एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन एक्स. आई थिंक ग्रेटर देन एक्स था, है ना, जिसको हमने कहा था प्रूव करने के लिए कि फंक्शन बनाया टेंजेंट एक्स माइनस एक्स और इसका लिया डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव इसका आया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, विच इज बेसिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. इजंट इट? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, एलसीएम लेके ये बन गया. इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, and that is tangent square x. Now tangent square x is positive. अच्छा हाँ सही है, सर को बोल देना बंद कर देना रिकॉर्डिंग. ये भी रिकॉर्ड हो गया. connection was gone again.
Sorry for that. अच्छा जी, I was talking about कि हमने एक प्रॉब्लम ये किया था, tangent x is equal to less than x for x belongs to 0 to pi by 2. We made a function fx is equal to tangent x minus x. No, I think it was not this. It was this. So f prime came out to be what? Secant square minus 1, or 1 upon cos square minus 1 becomes sin square upon cos square, so tangent square x. So that is positive for each x greater than, in fact, not greater than, rather belonging to interval 0 to pi by 2. This means f is increasing for each x belonging to the interval 0 to pi by 2. And that means if I consider f of 0, so इस function की value 0 आती है और increase कर रहा है, तो that means कि tangent x minus x starts with 0 value, so increasing, and it must go positive for each x belonging to the. चलो भाई, वो inequality proof हो गई कि tangent x is greater than x. अब मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मैं क्वेश्चन तो खुद बनाता हूँ. अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया और मेरे जहन में ये था कि this is y is equal to x, whereas secant has a graph of this type. I hope you people remember that. So इस ग्राफ की जो विजुअलाइजेशन मेरे जहन में आ रही थी, उसके हिसाब से secant x has to be greater than x. अच्छा, इसका मतलब फंक्शन क्या बनाऊंगा मैं? secant x minus x, इसका डेरिवेटिव लूंगा. So secant x tangent x minus 1, and that makes sin x upon cos square x minus 1. Now this does not come out into a form where I can conclude about the sign of the derivative. अब जब मैंने ये चीज देखी, हाँ बोलो. तो इससे ऊपर वाला जो tan x माइनस हाँ x आपने रखा है फंक्शन, हाँ, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 1. मैंने और क्या कहा था? tan स्क्वायर x क्यों होगा? अबे भाई, सर आपने आगे f प्राइम x को tan स्क्वायर x. हाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी. सब कुछ कर चुका है, ठीक है. तो यहाँ तो ये आप इतनी जल्दी जल्दी बस ऐसे कर देते हैं ना, इतना तेज नहीं चलता दिमाग. आराम आराम से नहीं, ये मैं पहले कर चुका था बिफोर डिस्कनेक्टिंग. डिस्कनेक्शन से पहले मैं ये कर चुका था. तो sin स्क्वायर अपॉन cos. सर आपकी एक्चुअली ना बार बार वीडियो जाके आ रही है, फिर आवाज बीच में बंद हो रही है, तो इस वजह से ना काफी. अरे भैया, पिछला एक हफ्ता जो है बहुत खराब गुजरा है. पता नहीं क्या बात है यहाँ पे. Either I have to change the device or something else. I can't change the place. I can't go out. मुझे लोग जाने नहीं देते घर से, घर वाले निकलने नहीं देते मुझे. Anyways, अब मैं इस पोजीशन में आया. अब इस केस, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर आ रही है आवाज. ओके. अब ये चीज जो है, ये जनरल जो परसेप्शन है हमारा सीकेंट के बारे में, उसके हिसाब से सही है. और अगर तुम इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखो तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं. लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो, यानी इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं सीकेंट माइनस, तो पॉजिटिव वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन वो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है 0 से पाई बाई 2 तक. अब जब 0 से पाई बाई 2 तक ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो डेरिवेटिव डोंट हैव सेम साइन. देयर इज अ पॉइंट वेयर it is decreasing, that is negative derivative, and after that there is positive derivative. So over the whole
अब ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, भाई दिस फंक्शन इज पॉजिटिव एवरीवेयर इन द इंटरवल 0 to π/2, लेकिन ये इसका फैसला कि ये फंक्शन, ये इनइक्वालिटी वैलिड है, डेरिवेटिव के जरिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि डेरिवेटिव हैव अ चेंजिंग साइन, और वो जो तरीका हम इनइक्वालिटीज को साबित करने का इस्तेमाल करते रहे हैं वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो अब जब इस तरह की चीज़ें फंसती हैं तो मैं चूँकि दरमियान का आदमी हूँ ना, मैं प्योर मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं, तो मैं तो कंप्यूटेशनल या अप्लाइड वाला आदमी हूँ, तो मैं फौरन अपना कंप्यूटेशनल टूल निकालता हूँ, उससे देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। When I was stuck up in this part कि भाई इसके साइन का तो फैसला हो ही नहीं पा रहा कि डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। Then I made a graph of it using Excel sheet with small interval and came to know that ये ग्राफ जो है इसका डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है अपना, इसलिए इस इंटरवल पे है। हाँ, अब मैं इसका इंटरवल चेंज कर दूँ, अगर मैं इस इंटरवल पे देखूं तो यहाँ तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। जब डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है सीकेंट इज 1/cos, 0 पे 0 - 0 0, तो सीकेंट x - x, नहीं यार कुछ और मसला था, इट वाज नॉट दिस प्रॉब्लम, कोई और मसला था। एनीवेज सम प्रॉब्लम्स as we go forward in the study of the nature of derivability, integrability, प्रॉब्लम बनाना मुश्किल होता चला जाता है। तो अब उसके बाद उसमें मुझे तो ये जी सेकंड पार्ट बना रहा था मैंने, जो मैंने कल आपको कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे उसके पार्ट। अब इस पे फंस गया मैं, फंस गया तो उसके बाद दिमाग की बत्ती गुम हो गई। मेरी बड़ी बहन जिन्होंने प्योर मैथमेटिक्स में PhD किया था, और कभी 1979-80 में कंप्लीट किया था एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, तो उनके जो प्रोफेसर, उनके जो सुपरवाइजर है, उनका उनकी एक सेइंग थी कि अगर आप मैथमेटिक्स, वाकई मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो एक दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद ये नेचुरल ह्यूमन कैपेसिटी है डूइंग मैथमेटिक्स, एंड डूइंग मैथमेटिक्स मीन्स व्हाट, either solving a problem or trying to prove something from scratch, whether you have done it before or not, whether you know the proof or not. If you know the proof, putting in appropriate words. If you don't know the proof, to create the proof. तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये 24 घंटे में 4 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता इंसान का ब्रेन, उसके बाद स्टकअप हो जाता है। अब कुछ लोग जो हैं कहेंगे भाई प्योर मैथमेटिक्स इज वेरी क्लोज टू आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, और बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में 24 घंटे में से 18 घंटे लगाते हैं। तो आई कांट कंपेयर टू थिंग्स, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और अपने स्टूडेंट्स के बारे में मुझे ये नहीं होता कि मैं तुम्हें डेडलाइन दूँ तो कोई अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे दूँ। मैं तुम्हें आज इस वक्त 4-5 प्रॉब्लम बना के दूँ और मैं तुमसे कहूँ कि तुम बस 15 मिनट में सॉल्व करके दे दो। मैं जब तुम्हें क्विज कंडक्ट करता हूँ तो उसमें भी जो प्रॉब्लम्स तुम लोग देख चुके हो, जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम्स बनाते हैं, और तुम्हें सिर्फ एनालॉजी करनी होती है कि यार वो प्रॉब्लम ऐसे था तो ये प्रॉब्लम ऐसे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसी तरह टाइम रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम ग्रेजुएट लेवल पर होता है। ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था IBA में कि इम्तिहान कैसे कंडक्ट करेंगे, आपके क्या ऑप्शन हैं, ये वो अल्टीमेट डिसीजन पहुंचा, और हमने इसको चूज किया कि हम तो 9:30 बजे LMS पे पेपर अपलोड कर देंगे और 12:30 बजे हम ले लेंगे। मैंने उसमें 15 मिनट का और इजाफा कर दिया, मैं 15 मिनट का और भी इजाफा कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर दैट विल क्लैश विद योर अदर पेपर्स, क्योंकि अक्सर लोग अब शेड्यूल पे ले रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाना itself sometimes is very tricky.
दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ प्रॉब्लम्स बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आज बना लूँगा, कुछ कल बनाऊँगा। इस वीकेंड पे दे दूँगा कुछ और सैम्पल प्रॉब्लम्स, स्पेशली theory of integration और derivability and related topics पे। derivability and related topics जो हैं, इसमें देखो क्या चीजें हैं जो you need to focus on. When do we say a function is derivable? तो एक fx minus fa divided by x minus a की लिमिट निकालनी होगी तुम्हें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, और तुम्हें देखना होता है कि ये दोनों लिमिट सेम आ रही है नहीं आ रही, तो फंक्शन डिराइवेबल है। इस पर कई क्वेश्चंस तुम लोगों पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ दे चुका हूँ, कुछ कर दिए थे। उसके अलावा मैंने कहा रिलेटेड प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव के साइन। हमने एक रिजल्ट किया कि साहब अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव, तो देयर विल बी अ स्मॉल इंटरवल अराउंड दैट पॉइंट in which the derivative sign will remain positive, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो derivative sign doesn't change suddenly, तो ये एक प्रॉपर्टी है। और derivative if positive over an interval AB, then the function is increasing over the interval। इससे related inequalities हमने की हैं, inequalities के problems किए हैं। Now, not every problem will be entirely new in the examination. None of the proof will be new in the examination. So, ये जो हिस्सा है प्रूफ का, तो ये तो वही चीजें हैं जो हमने क्लास में प्रूफ किए हैं, उन्हीं में से कुछ आपसे मैं पूछूंगा। तो आप कहेंगे कि वो तो सारी चीजें हमारे पास हैं, हम उसको देख सकते हैं, तो देखो भले से, but use appropriate words, try to make it। हाँ, बात कहते हैं कि जी हमने अपने अल्फाज में लिखा था, अपने अल्फाज में लिखो और मतलब चेंज हो जाए, इससे जरा बच के रहना। प्रॉब्लम्स मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ बन जाते हैं सॉल्व भी हो जाते हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी एक सर्टेन लेवल पर हो, तो मैं नए प्रॉब्लम्स भी देता हूँ, लेकिन किताब के भी प्रॉब्लम्स को उठा के दे सकता हूँ। So that's it। एक चीज ये जरूर हुई है कि लास्ट फ्यू डेज बस तो भी तबीयत ऊपर नीचे होने के बावजूद भी मैं कंटिन्यूसली क्लास लेता रहा हूँ और थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। Perhaps it's the age factor or something else. Now, I will try to make things as manageable for you as possible. I will avoid making things too difficult for you. If it is too difficult for you, it's mutual, because then evaluation or checking of scripts is also difficult. So technically this is last class, क्योंकि मैंने अगर नेक्स्ट वीक के लिए जो आपको दिया बता टारगेट, वो क्विज़ से मुताल्लिक था। क्विज़ भी अब मैं मंगल और जुमेरात नहीं, सिर्फ मंगल कर रहा हूँ, नॉट थर्सडे। और मंगल को क्विज़ करके थोड़ा सा क्विज़ के बाद आपसे थोड़ी सी डिस्कशन होगी। मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बताए थे मंगल और जुमेरात के लिए, मंगल वाला एक टॉपिक और जुमेरात वाला एक टॉपिक, उस पर क्विज हो जाएगा। क्विज के बाद अगर मैं उस वक्त तक आपको कुछ असाइनमेंट्स दे चुका हूँ, तो इफ यू लाइक मी टू डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट द असाइनमेंट्स, तो मैं वो
मैं डिस्कस कर लूंगा। So that's it for today. सर थर्सडे को क्लास थर्सडे को क्लास जो आईबी का ऑफिशियल शेड्यूल है उसमें नहीं है। सर आप नेक्स्ट सेमेस्टर कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं? अच्छा सर, और दूसरी चीज मुझे बोलनी थी कि जो असाइनमेंट 2 दिए हुए हैं आप उनकी 21st कर दें, डेडलाइन मंडे नाइट कर दें ताकि हम ट्यूसडे को भी क्विज दे दें। चलो कर लेते। मैं तो वो डेडलाइन तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे दी है ना, एलएमएस पे तो नहीं दी है, और एलएमएस पे अभी मैंने अपलोड भी नहीं किया है। ये हुई शायद कुरैशी फैन तो मैंने एलएमएस चेक नहीं किया सर। नहीं, देयर इज समवन शायद कुरैशी फैन। दिस वन, कैन यू सी हिम? सर हम सभी आपके फैन हैं सर, कैसी बात। ये कोई खास फैन है यार। सर शायद कुरैशी इज फैन, would you please speak up? ओके हाँ, somebody was वेटिंग रूम में। नहीं अब तो नहीं आने दे रहा मैं। सर आने दें प्लीज, शायद कुछ काम होगा। अच्छा देखते हैं। एनीवेज पता नहीं मेरे ध्यान में क्या था। somebody asked something। ओह एक ये भी है, ये नाम रख लिए लोगों ने शायद कुरैशी पे। मैं देखा ही नहीं। अच्छा किसी ने कुछ पूछा था सवाल बीच में। सर क्या आप कमिंग सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं या नहीं? यार मैं नहीं करता हूँ सब्जेक्ट ऑफर, ये आपका डिपार्टमेंट करता है। और एक दिन मुझसे पूछा जाता है कि सर आप फलाना कोर्स पढ़ा देंगे। तो अभी जो मुझसे पूछा गया है वो कैल2 विद सॉलिड ज्योमेट्री है और लीनियर अलजेब्रा है। मैं नहीं ऑफर करता हूँ, बल्कि मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूँ आजकल कि अगर नहीं पूछा गया तो चलो अच्छा है, आराम करूँगा। तो एनीवेज वो पूछ लिया गया तो बता दिया मैंने कि भाई जो आप कहेंगे वो पढ़ा दूंगा। अपनी तरफ से मैं जो कोर्स ऑफर करना चाहता हूँ वो अब बहुत ही मुश्किल होगी। तो ग्रेजुएट लेवल का कोर्स, एमएस लेवल का कोर्स था जिसको अंडर ग्रेड इलेक्टिव बना दिया था मैंने, और मैंने पढ़ाया भी है वो रिपीटेडली आईबीए में, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। तो अब ये लोग ऑफर ही नहीं करते हो। अब मैं कहता नहीं हूँ इसलिए। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में हैं, प्लीज उन्हें अंदर ले लें। क्यों भाई, मैं बातचीत खत्म कर चुका हूँ, अब तो ऐसी करता सर प्लीज ले लें, कुछ काम है शायद। बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपसे। बहुत इम्पोर्टेंट काम है सर, ले लें अंदर। ओ अच्छा, ऐसा है कि फैन और शायद कुरैशी के नाम से जो लोग हैं वो अपना अफसल नाम लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब तो एंटर हो गए, क्या जरूरी काम था। हेलो, should I stop recording? नहीं सर, यस सर। आपकी आवाज शायद कट रही है। अब मेरी आवाज तो कट रही है, रिकॉर्डिंग की तो जरूरत नहीं रही ना अब। जी सर रिकॉर्डिंग।